Dhritarashtravacha. Dhritarashtravacha. King Dhritarashtra said, King Dharma Kshetre, in the place of pilgrimage, Kurukshetre, in the place named Kurukshetra, Samveta, assembled, Yutsavaha, desiring to fight, Mamaka, my party, my sons, Pandava, the sons of Pandu, Cha, and Eva, certainly, Kim, what? Akurvat, did they do? Sanjay, O Sanjay. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada ki. Jai. Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? Purport. Bhagavad Gita is the widely read theistic science summarized in the Gita Mahatmya, glorification of the Gita. There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Sri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself, in the way the teaching is understood by Arjuna, who heard the Gita directly from the Lord. If someone is fortunate enough to understand the Bhagavad Gita in that line of disciplined succession without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. That is the specific standard of the Gita. It is the perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna. The topics discussed by Dhritarashtra and Sanjay, as described in the Mahabharata, form the basic principle for this great philosophy. It is understood that this philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetra, which is a sacred place of pilgrimage from the immemorial time of the Vedic age. It was spoken by the Lord when he was present personally on this planet for the guidance of mankind. The word Dharma Kshetre, a place where religious rituals are performed, is significant because on the battlefield of Kurukshetra, the Supreme Personality of Godhead was present on the side of Arjuna. Dhritarashtra, the father of the Kurus, was highly doubtful about the possibility of his son's ultimate victory. In his doubt, what did they do? He was confident that both his sons and the sons of his younger brother Pandu were assembled in that field of Kurukshetra for a determined engagement of the war. Still, his inquiry is significant. He did not want a compromise between the cousins and brothers, and he wanted to be sure of the fate of his sons on the battlefield. Because the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, even for the dungeons of heaven, Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle. He knew very well that this influenced Arjuna and the sons of Pandu favorably, because by nature they were all virtuous. Sanjay was a student of Vyas, and therefore by the mercy of Vyas, Sanjay was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra. And so Dhritarashtra asked him about the situation on the battlefield. Both the Pandavas and the Dhritarashtra belong to the same family, but Dhritarashtra's mind is disclosed herein.
he deliberately claimed only his sons as Kurus, and he separated the sons of Pandu from the family heritage. One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephew, the sons of Pandu. As in the paddy field, the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of this topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion Sri Krishna was present, the unwanted plants like Dhritarashtra son Duryodhana and others would be wiped out, and thoroughly the religious persons headed by Yudhishthir would be established by the Lord. This is the significance of the words Dharmukshetre and Kurukshetre, apart from the historical and Vedic importance. Srila Prabhupada की जय। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि गीता का पहला श्लोक हमने पढ़ा, और यहाँ धृतराष्ट्र जो है संजय से इंक्वायरी कर रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, जैसा कि आपने श्लोक में पढ़ा। इसका मतलब यह है कि कुरुक्षेत्र में जो धर्म का अवलंबन करने वाला होगा, जो धर्म को फॉलो करने वाला होगा, वही विजयी होगा। और इसी बात से धृतराष्ट्र चिंतित है। धृतराष्ट्र जानते हैं कि मेरा पुत्र दुर्योधन और उसके 100 भाई ये सब धर्म का अवलंबन नहीं करते। एक्चुअली दुर्योधन का नाम उनके जन्म के समय रखा गया था सुयोधन। उनका नाम रखा गया था सुयोधन, दुर्योधन का। लेकिन उसके खराब कर्मों के कारण उसका नाम बाद में प्रचलित हो गया दुर्योधन। और ये बात धृतराष्ट्र अच्छी तरह जानते थे कि मेरा पुत्र धर्म को कभी भी फॉलो नहीं करता है, बचपन से नहीं किया है। जिन्होंने भी यहाँ पे महाभारत देखा है वो सब अच्छी तरह जानते हैं कि दुर्योधन के कर्म बचपन से सही नहीं। हमेशा उसने पांडवों के साथ बेईमानी की, हमेशा। और हमेशा कितनी बार तो उसने धोखे से उन लोगों को मारना चाहा, लेकिन बार बार भगवान की कृपा से वो लोग बच जाते थे। हमने पढ़ा है कहीं शास्त्रों में कि नॉट इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ द लॉर्ड। भगवान की मर्जी के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता है। तो भगवान जिसको चाहेंगे वही मरेगा। भगवान जिसकी रक्षा करेंगे उसको दुनिया की कोई भी ताकत मार नहीं सकती। तो यहाँ पांडव भक्त थे और पांडवों के पक्ष में थे श्री कृष्ण। और गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धन तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मति। जहां भी कृष्ण होंगे वहीं पे विजय होगी, वहीं पे लक्ष्मी आएंगी। श्री वहीं पे लक्ष्मी आएंगी और वहीं पे विजय होगी। तो धृतराष्ट्र ये बात भी जानते हैं कि पांडवों के पक्ष में भले ही पांडव 5 भाई हैं और मेरे पुत्र 100 भाई हैं, लेकिन पांडवों के पक्ष में साक्षात श्री कृष्ण है। और जहां भी कृष्ण हो जिस पार्टी में, वो कभी भी हार नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, ये प्रचलित है हमारे इस्कॉन में। मतलब कृष्ण जिसको मारना चाहे उसे कौन बचा सकता है, और कृष्ण जिसे मारना चाहे उसे कौन बचा सकता है, और कृष्ण जिसे बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। ये हमारे इस्कॉन में प्रचलित है।
और एक्चुअली ये पूरे विश्व में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में ही भगवान है, सबके लिए है। जो भी भक्ति करता है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। अब बार बार लोगों का ये प्रश्न होता है कि भक्ति तो मैं भी करता हूँ, लेकिन भगवान मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? संसार में इतने सारे पाप हो रहे हैं, अपराध हो रहा है, क्राइम हो रहा है, लोग को मार रहे हैं। रोज हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, कहीं ना कहीं हत्या हो रहा है। तो भगवान सबकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? तो बात यह है कि भगवान उसी की रक्षा करते हैं जो कंप्लीटली सरेंडर हो। हम कंप्लीटली सरेंडर नहीं। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे मन के कोने में है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूं। हम फुली डिपेंडेंट भगवान पे नहीं। जिस दिन हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं भगवान को, उस दिन से भगवान हमारा टेक केयर करना शुरू कर देते हैं। तो हम भले कितना भी बोले कि मैं तो इतना भक्ति कर रहा हूं, मैं तो कंप्लीटली सरेंडर हूं, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक ईगो है, मैं और मेरा, आई एंड माइन, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई कैन डू एनीथिंग, nobody can control me, I am the controller। ईश्वर शब्द का अर्थ ही होता है नियंता। जो ईश्वर शब्द है उसका अर्थ है नियंता, कंट्रोलर। तो जब तक हम अपने आप को ईश्वर समझते रहेंगे तब तक भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। और कितनी ही कथाएं हैं भागवतम में जहां पे हम देखते हैं कि जब जो भक्त कंप्लीट सरेंडर होता है भगवान को, भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं। अभी बहुत जल्द होली का त्यौहार आने वाला है, 28 तारीख को होली है। सब लोग खुश हैं, ये इस मंथ में होली आने वाला है। गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं सारे भक्त। तो होली मनाई जाती है, इसके पीछे भी एक कथा है कि प्रहलाद महाराज, जो कि बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, उनका जन्म हुआ था एक असुर कुल में। हम कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है, इतनी समस्याएं आ रही हैं, इतनी बाधाएं आ रही हैं, मेरे से ज्यादा दुख तो किसी ने सहा ही नहीं। मम्मी पापा ने कुछ थोड़ा सा टोक दिया, बोल दिया, तो हम तुरंत मंदिर आना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। या थोड़ी सी बाधा आती है भक्ति में तो हम छोड़ देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन एक बार आप लोग प्रहलाद का कथा सुनिए। प्रहलाद ने क्या क्या सहा है, फिर भी भगवान को उन्होंने छोड़ा। प्रहलाद महाराज की कथा ऐसी है भागवत में बहुत विस्तार से दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े छोटे में उसको डिस्कस किया जाए, ताकि हम लोग जो होली का त्यौहार आ रहा है इसके पीछे कारण भी जान जाएं, और साथ ही साथ ये भी समझें कि हम भक्ति में कितने प्रगति कर पाए, कितना प्रगति कर पाए, कितना आगे निकल पाए, और कितना भगवान को सरेंडर कर पाए। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रहलाद महाराज जब गर्भ में आए तो उनकी माता का नाम था कयाधु और उनके पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा राक्षस था और उसका भाई था हिरण्याक्ष। ये दोनों भाई थे, और हिरण्याक्ष को मारने के लिए भी भगवान ने एक अवतार लिया है, वराह अवतार। हिरण्याक्ष इतना पावरफुल था कि उसने पूरी पृथ्वी को उठा के समुद्र में डुबा दिया था, गर्भोदक सागर में। तो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, वराह अवतार। उसी वक्त हिरण्यकशिपु ने कसम खाया था कि मैं विष्णु का वध जरूर करूंगा और मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। जिसने भी मेरे भाई को मारा है उसको मैं भी मारूंगा। ये उसी समय हिरण्यकशिपु ने वचन मतलब कसम खा लिया था। तो आगे घटना ऐसी होती है कि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती होती है, और उसी समय
हिरण्यकशिपु चला जाता है तपस्या करने उसी समय। तो जब वो जाता है तो उसका राज्य में कोई होता नहीं, तो सारे देवता अटैक करते हैं उसके राज्य पे। इंद्र, सारे देवता देखते हैं कि अब तो हिरण्यकशिपु चला गया, अब सारे राक्षसों को हम लोग आसानी से मार सकते हैं। जो लोग अटैक करते हैं, लेकिन उसी समय जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी को भी देवता लोग पकड़ लेते हैं। हिरण्यकशिपु की पत्नी, नाम था उनका कयाधु, और उस समय वो गर्भवती थी, और यही प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे। तो जब देवता लोग पकड़ के उनको ले जाने लगे, उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हुए। नारद मुनि आपको पता है कि वो कहीं भी घूमते रहते हैं, ब्रह्मांड में वो कहीं भी जा सकते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। ना जाने कितने लोगों को इन्होंने भक्त बनाया है नारद मुनि। तो नारद मुनि वहां प्रकट हुए और बोले कि नहीं, स्त्री के साथ आप लोग ऐसा व्यवहार मत कीजिए, इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। एक तो ये गर्भवती है और ऊपर से स्त्री है, तो आप लोग देवता हैं, आप लोग स्त्री पर जुल्म मत कीजिए। भले ही ये किसी राक्षस की पत्नी है, लेकिन है स्त्री, इसलिए इस पर जुल्म मत कीजिए, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। तो नारद मुनि कयाधु को लेके चले गए अपने साथ, और उस समय कयाधु गर्भवती थी। तो कयाधु ने कहा कि मुनि जी, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन आप मुझे एक वचन दीजिए कि मैं अभी गर्भवती हूं, जब तक मेरे पति नहीं आ जाते घर अपनी तपस्या पूरी करके, तब तक मेरा बच्चा जन्म न ले। ऐसा वो वरदान मांगती है नारद मुनि से कि जब तक मेरे पति वापस नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगा। तो हिरण्यकशिपु चला जाता है तपस्या करने, 10,000 साल तक वो तपस्या करता है जंगल में, और इधर 10,000 साल तक प्रहलाद महाराज का जन्म नहीं होता। 10,000 साल तक वो गर्भ में रहते हैं, लेकिन उनका जन्म नहीं होता। ये वरदान दिया है किसने? नारद मुनि। तो हिरण्यकशिपु जब वापस आता है तपस्या पूरा करके, हिरण्यकशिपु जब वापस आता है तपस्या पूरा करके, तब प्रहलाद महाराज का जन्म होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। कैसा वरदान मांगा? बहुत उलझा हुआ, बहुत सारे उसने शर्त रखे ताकि मैं किसी से मारा ना जाए। उसने भगवान से मांगा, ब्रह्मा जी से, कि मैं दिन में ना मरूंगा, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना धरती पे, ना आकाश पे, ना मनुष्य से, ना जानवर से, ना स्त्री से, ना पुरुष से। इतने सारे उसने कंडीशन शर्त लगा दी है अपनी मृत्यु के लिए, और उसको लगा कि अब मैं अमर हो गया, अब मुझे कोई मार नहीं पाएगा। उसको लगा कि अब मुझे कोई मार नहीं पाएगा। तो जब वो तपस्या करके वापस आया, उसी समय प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। और आप लोग देखिए, उसने तपस्या किया 10,000 साल, लेकिन देखिए कि राक्षसी प्रवृत्ति का अगर कोई व्यक्ति हो तो उसकी तपस्या ज्यादा दिन चलती नहीं। उसको लगा कि मैं पूरे विश्व में सबसे पावरफुल हो गया हूं, मुझे अब कोई हरा नहीं सकता है। उसने सारे देवताओं को मारना शुरू कर दिया, पूरे विश्व में त्राही त्राही मचाना शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु, सारे देवता एकदम अपने, इंद्र अपने स्वर्ग छोड़ के भाग निकले। तो प्रहलाद महाराज को इसने भेजा गुरुकुल में पढ़ने के। उस समय प्रहलाद महाराज थे सिर्फ 5 साल के, और नया नया बोलना सीखे थे।
तो 5 साल में इसे तीनों लोगों पे कब्जा कर लिया हिरण्यकशिपु ने, और इनको भेजा गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो भागवतम में दिया हुआ है कि इनके गुरु का नाम था संड और अमरक, 2 इनके गुरु थे प्रहलाद महाराज। दोनों इनको ले गए अपने गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए। तो इनको एक ही बात सिखाया जाता था कि भगवान कौन है। प्रहलाद महाराज को क्या सिखाया जाता था? भगवान कौन है। तो इनके टीचर बोले कि भगवान है हिरण्यकशिपु, और ये बार बार बोले कि नहीं, विष्णु, भगवान विष्णु है। इनके दोनों टीचर थक गए इनको सिखाते सिखाते कि नहीं, भगवान हिरण्यकशिपु है, और बार बार ये बोले कि नहीं, भगवान तो विष्णु है, आप गलत बोल रहे हैं। अब इतना जिद इसमें कहां से आया, इतनी समझ कहां से आई? क्योंकि इसने नारद मुनि का संग किया गर्भ में ही। प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, और गर्भ में ही ये कहां चले गए थे? नारद मुनि के आश्रम में। तो वहां दिन रात नारद मुनि नारायण नारायण करते हैं, नारायण नारायण जपते हैं अपने आश्रम में। तो ये गर्भ में ही बैठे बैठे सुन रहे थे नारायण नारायण प्रहलाद महाराज। तो ये सुनते सुनते भगवान के भक्त हो गए प्रहलाद महाराज। अब देखिए, इतने बड़े असुर के पुत्र हैं, और तीनों लोकों में कोई ये कहने वाला नहीं है कि भगवान हिरण्यकशिपु नहीं है। तीनों लोकों पे हिरण्यकशिपु का कब्जा है। तीनों लोकों पे किसका कब्जा है? हिरण्यकशिपु का। और कोई ऐसा कहने वाला नहीं है कि नहीं, विष्णु भगवान है। लेकिन उसका पुत्र ही कह रहा है कि विष्णु भगवान है, आप भगवान नहीं है। हिरण्यकशिपु का पुत्र ही कह रहा है कि आप भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु है। तो हिरण्यकशिपु ने बोला, अपने टीचर्स को बुलाया, बोला कि इसको वो लेके आओ। शिक्षकों को बोला कि प्रहलाद को लेके आओ। उन्होंने कंप्लेन किया टीचर्स ने कि आपके बेटे को हम कितना भी पुत्र को सिखा रहे हैं कि नहीं, भगवान हिरण्यकशिपु है, ये मानता ही नहीं। बार बार बोलता है कि भगवान तो विष्णु है, नारायण है, मेरे पिता भगवान नहीं है। तो टीचर उनके लेके आए हिरण्यकशिपु के पास, शिकायत किया पिता से। तो बोला कि इसको दोबारा ले जाओ, सिखाओ, ये बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। वो लोग दोबारा लेके गए गुरुकुल, लेकिन फिर भी वो प्रहलाद महाराज जिद पे अड़े रहे और स्वीकार नहीं किया कि हिरण्यकशिपु भगवान है। तो फिर टीचर आए, बोले कि ये तो बात मानी नहीं है हमारा, जितना भी इसको सिखा रहे हैं कि आप भगवान हैं, ये नहीं मानता है। तो हिरण्यकशिपु अब क्या, अब उसको बाई फोर्स, अब बल के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करने लगा। पहले तो प्यार से समझाया कि बेटा, मैं भगवान हूं, नारायण भगवान नहीं है, विष्णु भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं। लेकिन बार बार प्रहलाद बोले कि नहीं, आप भगवान नहीं हैं, विष्णु भगवान है, नारायण भगवान है, आप भगवान हो ही नहीं सकते। तो पहले तो बहुत प्यार से हिरण्यकशिपु ने समझाया प्रहलाद महाराज को, लेकिन प्रहलाद महाराज बार बार यही बोलते रहे कि नहीं, विष्णु भगवान है, विष्णु। तब उनको सोचा कि अब ये पुत्र जो है ये मूत्र के समान है। भागवत में ऐसा लिखा है कि पुत्र और मूत्र दोनों एक जगह से आते हैं। पुत्र और मूत्र दोनों एक जगह से आते हैं। अगर पुत्र भगवान का भक्त हुआ तो वो पुत्र है, और अगर वो भगवान का भक्त नहीं हुआ तो वो पुत्र है। अगर पुत्र भगवान का भक्त नहीं हुआ तो क्या है? मूत्र के समान, क्योंकि पुत्र और मूत्र दोनों एक जगह से आते हैं। तो पू नाम का एक नरक है, तो जो
पुत्र अपने पिता को उस नरक से तार देता है उसको बोलते हैं पुत्र। तो जो पुत्र अपने पिता को उस नरक से तार देता है, बाहर निकालता है, उसको बोलते हैं पुत्र। और जो वो नहीं कर पाता है वो हो जाता है मूत्र। तो जो भगवान का भक्त होता है वो आसानी से अपने पिता को उस नरक से पार निकाल देता है। तो यहां हिरण्यकशिपु उल्टा ज्ञान दे रहा है प्रहलाद महाराज को, बोल रहा है कि तू मुझे भगवान नहीं मान रहा इसलिए तू मूत्र के समान है, तू पुत्र नहीं है मेरा। और उसके बाद अलग अलग वो उपाय करने लगा, ढूंढने लगा कि कैसे इसको खत्म कर दिया जाए। अपने पुत्र को ही मारने के पीछे पड़ गया। देखिए, इसे कहते हैं असुर, राक्षस। राक्षस सिर्फ अपने मन की सुनते हैं। राक्षस सिर्फ अपने मन की सुनते हैं और जो मुझे अच्छा लगता है वही होना चाहिए। और यही आजकल में सिखाया जाता है, सिर्फ अपने मन की सुनो। शास्त्र मत पढ़ो, शास्त्र को फॉलो मत करो, भगवान को मत मानो, भगवान को फॉलो मत करो। तो हमें क्या बनाया जा रहा है? असुर। जिसने भी शास्त्र नहीं पढ़ा है और भगवान को नहीं मानता है वो क्या होता है? असुर। तो आज की शिक्षा, आज का वातावरण, आज का समाज हमें असुर बनाने पर तुला हुआ है। खुद तो असुर है ही और साथ ही साथ अपने पुत्र, अपने आसपास के लोगों को भी असुर बनाने में तुले हुए। हम आपको शास्त्र चर्चा नहीं करने देंगे, हम आपको मंदिर नहीं जाने देंगे, हम आपको गीता नहीं पढ़ने देंगे। ये माँ बाप ही अपने पुत्र को बोल रहे हैं। तो वो माँ बाप हिरण्यकशिपु से कम नहीं है कि अपने पुत्र को ही भगवान का भक्त बनने से रोक रहे हैं। तो आजकल यही चल रहा है। 99% माँ बाप हिरण्यकशिपु हो गए। इन कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हिरण्यकशिपु ने अलग अलग उपाय करना शुरू कर दिया प्रहलाद महाराज को मारने के। बोला कि अब ये मेरी बात नहीं मान रहा है और इन तीनों लोगों में यही एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे भगवान नहीं मानता है। मेरा पुत्र ही मुझे भगवान नहीं मानता है। सब कोई मानता है, यहां तक कि देवता भी, लेकिन यही मेरा पुत्र ही है जो मुझे भगवान मानने से इनकार कर रहा है। तो अब इसे जीने का अधिकार नहीं। ये मर जाए तो ही अच्छा है। तो हिरण्यकशिपु ने उस अपने पुत्र को मारने के लिए अलग अलग विधियां अपनानी शुरू कर दी। कभी उनको हाथी के पास भेजा, पागल हाथी के पास। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि पागल हाथी उनको प्रणाम करने लगा बैठ प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को बैठ के अपना सूंड उठा के प्रणाम करने लगा कि आपको मैं कैसे छू सकता हूँ, आप तो भगवान के भक्त। क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। पागल हाथी के हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो भगवान सिर्फ सरेंडर्ड भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज पूरी तरह से सरेंडर है भगवान को। वो पागल हाथी के सामने भी जाके भगवान को याद कर रहे हैं प्रणाम करके। आप भागवतम में पढ़ेंगे, भागवतम में उनका चित्र देखिए। हम पागल हाथी के पास जाएंगे तो भागना शुरू कर देंगे। हम अपनी रक्षा करने का प्रयास करेंगे कि हम इसे भाग जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज जाके भगवान को बस स्मरण कर रहे हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं, हाथी का हृदय परिवर्तन कर देते हैं। फिर प्रहलाद महाराज को सांपों के बीच में फेंका गया, विषैले सांपों के बीच में, कि सांप काट के मर जाए। लेकिन कोई सांप प्रहलाद महाराज को काटे ही नहीं। भगवान ने सबका हृदय परिवर्तन कर दिया।
किसी ने प्रहलाद महाराज को नहीं काटा। फिर हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका, उसको वरदान था, उसके पास एक चादर था, वो चादर उड़ के आग में बैठ जाती थी और वो जलती नहीं थी। तो उसने कहा कि मैं प्रहलाद को अपने गोद में लेके और अग्नि में बैठ जाऊंगी, तो मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज को लेके और अग्नि में बैठ गए चादर ओढ़ के। अब भगवान की महिमा देखिए, ऐसी महिमा हुई कि चादर उसके शरीर से निकल के प्रहलाद महाराज के ऊपर चला गया और होलिका खुद जल के भस्म हो गई। यही होलिका हम जलाते हैं होली के एक दिन पहले। तो होलिका जलाने का अर्थ क्या है कि जितने भी भक्तों के दुश्मन हैं, जितने भी भक्तों के दुश्मन हैं, उनको हम लोग जला रहे हैं। जैसे दशहरे में रावण को जलाया जाता है, रावण का पुतला, कि समाज में जितने भी रावण हैं उनको जला दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। उसी तरह हम होली के एक दिन पहले होलिका जलाते हैं। होलिका भी क्या थी? भक्त की दुश्मन थी, भक्त प्रहलाद को ही मारना चाहती थी। प्रहलाद महाराज की रक्षा हो गई, क्योंकि प्रहलाद महाराज कंप्लीटली सरेंडर थे किसको? भगवान को। तो इस तरह आगे हिरण्यकशिपु ने और भी बहुत सारे प्रयास किए, उनको पहाड़ से चोटी से फेंकवाया, लेकिन भगवान ने उनको नीचे पकड़ लिया, प्रकट हो गए। वहां से भी प्रहलाद महाराज की रक्षा हो गई। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने देखा कि मैं तो इसको मार ही नहीं पा रहा, हर जगह ये बच जाता है, मैंने सारे उपाय करके देख लिए। तो खुद बुलाया उसने और बोला कि बोलो भगवान कौन है? तो उसने बोला कि विष्णु भगवान। तो बोले कि बोलो तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, मैं उसे खत्म कर दूंगा, मेरे पास इतना शक्ति है, बोलो। तो गुस्से में उसने पूछा कि इस खंभे में भगवान है, बोलो। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि हाँ इसमें भी है। तो हिरण्यकशिपु ने गुस्से में मारा गदे से खंभे में, खंभा टूटा और भगवान प्रकट हो गए। नरसिंहदेव भगवान की जय। खंभे से कौन प्रकट हुआ? नरसिंहदेव। और एकदम शेर की तरह दहाड़ते हुए, और उनकी दहाड़ इतनी तेज थी कि तीनों लोग के लोग कांपने लगे। तीनों लोग, वो इतना तेज दहाड़ है। और उनका ऊपर का अंग था शेर की तरह और नीचे का था नर की तरह, इंसान की तरह, इसीलिए उनका नाम था नरसिम्हा। तो उनको देखते ही, नरसिंह को देखते ही हिरण्यकशिपु के सैनिकों ने अटैक कर दिया उनको, लेकिन भगवान ने अपने नाखूनों से सबको खत्म कर दिया। उसके बाद हिरण्यकशिपु को इन्होंने पकड़ा। हिरण्यकशिपु लेने आया भगवान, उसने अपना 2-4 गदा चलाया भगवान, लेकिन भगवान उसके साथ खेले। भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं। हिरण्यकशिपु भी एक प्रकार का भक्त है, बाद में कथा सुनाऊंगा मैं कभी। तो भगवान अपने भक्तों से खेलते हैं, वो जानते हैं कि हिरण्यकशिपु भी मेरा भक्त है। तो पहले तो खेले भगवान उसके साथ कुछ देर तक। तो हिरण्यकशिपु अपना खूब बल लगाया, भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन अब भगवान को कौन मार सकता है? भगवान उसको गोद में उठा लिया और गोद में उठा के चौखट पे ले गए, घर की चौखट पे। और आकाशवाणी हुई, जितना भी उसने शर्त रखा था हिरण्यकशिपु ने कि ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, तो वो जो समय था वो मिलन था, संधि था दोनों का, दिन और रात। जो अभी 15 मिनट बाद समय जो आएगा, ये मिलन कहते हैं इसको, दिन और रात का। ये ना दिन है और ना रात। हाँ, समझा, गोधूली का समय। उसके बाद उसने कंडीशन रखा था कि मैं ना धरती पे मरूंगा ना आकाश में, तो उसको गोद में रख लिया भगवान। फिर बोला था उसने कि ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से,
तो बोले कि तुम्हें नाखूनों से मारा जाएगा, ना नर से मरूंगा, ना इंसान से, ना जानवर से। तो बोला गया कि ना ये इंसान है ना जानवर है, ये नरसिंह है, आधा इंसान और आधा जानवर। इस तरह से उसके सारे शर्तों को पूरा करते हुए भगवान ने उसको मारा। अब और अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, तो भगवान ने किससे मारा? नाखूनों से। नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और उसके इंटेस्टाइन, अतड़ियों का माला पहन दिया भगवान, अतड़ियों का माला। वैसा कहा जाता है कि उसने एक माला भगवान को ऑफर कर दिया हिरण्यकशिपु ने, तो भगवान ने उसका उद्धार। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन किन भक्तों की? जो पूरी तरह से भगवान को सरेंडर। द्रौपदी का उदाहरण एक आता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पहले द्रौपदी ने पांडवों को पुकारा अपनी रक्षा के लिए, तो भगवान ने रक्षा नहीं किया। फिर द्रौपदी ने भीष्म को पुकारा रक्षा के लिए, तो भी भगवान ने रक्षा नहीं किया। फिर द्रौपदी ने द्रोणाचार्य को पुकारा रक्षा करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी रक्षा नहीं की। फिर द्रौपदी खुद से प्रयास करने लगी कि मैं अपने आप को बचा लूं, लेकिन देखी कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकती। तो फिर उसने साड़ी छोड़ के भगवान को हाथ जोड़ के याद किया कि हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान ने वचन दिया था कि आप मेरी बहन की तरह हैं और जब भी मुझे आप याद करेंगे मैं आपकी रक्षा करूंगा। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। एक नाम क्या था द्रौपदी का? कृष्णा। कृष्णा मतलब होता है सांवली। द्रौपदी सांवले रंग की थी, इसलिए उनका नाम क्या था? कृष्णा। तो कृष्ण की बहन कृष्णा। कृष्ण उनको अपने बहन के समान मानते द्रौपदी को। तो जब उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया भगवान को, तब भगवान ने उनका रक्षा किया। तो यहां हम देखते हैं कि अर्जुन भी, गीता में हम देखेंगे आगे, अर्जुन भी भगवान को पूरी तरह से सरेंडर करेंगे। जब भगवान अपना विश्व रूप दिखाएंगे अर्जुन को 11वें अध्याय में, तो भगवान तो अर्जुन क्या करेंगे? सरेंडर कर देंगे और हाथ जोड़ के बोलेंगे कि मैं अब तक आपको अपना मित्र समझता था। क्या समझता था? मित्र, सखा समझता था, आपसे मजाक किया करता था, आपके कंधे पे हाथ रखा करता था, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आप ही परम भगवान हैं। और तब उनके चरणों में वो सरेंडर करेंगे और एक श्लोक बोलेंगे कि परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवान। आप ही परम ब्रह्मा हैं, आप ही परम धाम है और आप ही सबको पवित्र करने वाले हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, मतलब आप ही आदि देव हैं। इस तरह अर्जुन भगवान को सरेंडर करते हैं। फिर भगवान अर्जुन की रक्षा करेंगे। जब अर्जुन ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया, तब भगवान उनकी रक्षा। तो जब हम पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, तभी भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और धृतराष्ट्र ये बात जानता है कि अर्जुन परम भक्त है कृष्ण का, पांचों पांडव परम भक्त हैं कृष्ण के। इसीलिए अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं लिया। क्या चुना उसने? कृष्ण को चुना। जब अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास गए थे, तो दुर्योधन ने क्या मांगा था? नारायणी सेना मांगा था कृष्ण से, और अर्जुन ने क्या मांगा था? कृष्ण को मांगा था, क्योंकि वो जानता था कि जहां कृष्ण है वहीं विजय है। उसको इतना विश्वास था भगवान पे।
और ये बात धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे पुत्र 100 है लेकिन उनके पक्ष में कृष्ण है, और ये धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र को यहाँ धर्म क्षेत्र बोला गया है। यहाँ धर्म की स्थापना होगी, धर्म की विजय होगी। और पांडव हमेशा धर्म के पक्ष में रहते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, इसीलिए उनकी विजय होने वाली है। ये धृतराष्ट्र को पहले ही पता था, इसलिए वो संजय से सवाल कर रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और वो कुरुक्षेत्र को क्या बोल रहे हैं? धर्म क्षेत्र। तो यह हमारा गीता का पहला श्लोक था। आज हमने गीता की शुरुआत की है, और जैसा कि हमने चर्चा किया है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अधर्मी चाहे कितना भी पावरफुल हो, अंत में उसकी हार होती है। और धर्म चाहे कितना भी कमजोर दिखे, अंत में धर्म ही विजय होता है, धर्म की ही विजय होती है। तो यही हमें गीता के पहले श्लोक से सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ हम अपना गीता का पहला श्लोक और गीता का प्रवचन समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तजन की जय।